Today we'll study a new topic which is called linear programming. So what is a linear programming? Why it is used? What is the applications? How we'll get the benefit? All those things can be covered in this chapter. Okay. So linear programming is a operational or mathematical model. It is a model. Simply what is a linear programming? It is a model which solve the optimization problem and which can be solved by the linear programming equation form. Why this is called linear programming? Because the problem and the model will be solved in linear functions by using the linear functions. Clear? So linear programming is that much of mathematical programming. That means it is a mathematical programming. Linear program is a mathematical programming or mathematical model which is designed to solve optimization problem. Linear programming is designed to solve the optimization problem where all the constraints as well as objective are expressed in a linear term. Normally, linear programming model is used in a situations where there is a objective and we have certain constraint. Always our resources are constrained and always we are having an objective. For example, our objective is to produce maximum output, but our machine number of machine is limited, our machine hour is limited, our raw material is limited, our labor supply is limited. So there are so many constraints, but for achieving the objective we have to go and we have to proceed with the constraints. So हमको constraints सहित हमको हमर objective fulfill करियर अछि. हमको केबे भी unlimited resources मिलिबनी, सबले हम resources limited रहिबो. हमर limited resources को नेकी हम कोन करियो पड़िबो, हमर objective fulfill करियो पड़िबो. आ से limited resources को नेकी हम objective केमिति fulfill करिबा ता पय हम गोटे मॉडल बनैछे. जो मॉडल को हम कहते linear programming. आ हम आपको linear programming कहिले काहे ना objective function आ constraint function सब जगह हम linear equation को नेकी solve करिबा. तो सेट में हम एटा कहते linear programming. क्लियर? तापर linear programming model is used in a situation where number one, there should be an objective function सबोले हमर ऑब्जेक्टिव थाइ प्लान व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव may be the minimization of cost, objective may be the maximization of output, objective may be the maximization of sales, objective may be the maximization of profit, objective may be the maximization of revenue, objective may be the minimization of labor force, objective may be the minimization of cost, whatever may be. तो हमर केते गुड ऑब्जेक्टिव थाइ, तो डेफिनेटली वी शुड हैव एन ऑब्जेक्टिव. पॉइंट नंबर 2, there should be some constraint. There should be some constraint. हम पाखे किसी constraint है. Constraint माने limitations. That means पिले माने आमे मने कर देखो, for example गोटे Mr. X per month 50,000 इनकम करछि, 30,000 खर्च होछि, 20,000 सेविंग होछि. 5 वर्ष भितर से वर्ष को 2 लाख सेविंग करूची, वर्ष 2 लाख 5 लाख रे 10 लाख सेव करची. से गोटे घर बनाय चाहूची तो 30 लाख दरकार. दैट मींस तार ऑब्जेक्टिव होची टू प्रिपेयर द बिल्डिंग और हाउस फॉर हिमसेल्फ, बट द रिसोर्सेस आर कंस्ट्रेन्ड, बट विद द लिमिटेड रिसोर्सेस ही हैव टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव. सो फॉर दैट रीजन वी विल use the linear programming model. Clear? Linear programming model can solve the problem by using the linear equations. So this is called linear programming. Clear? So linear programming model is used in a situation where there should be an objective function. Definitely there should be an objective and there should be some constraint. Constraint may be 1, maybe 2, maybe 3, maybe more, whatever may be. गोटे constraint नाही पिला माने मु जो प्रोडक्शन करिया चाहूची, मोर रॉ मटेरियल भी शॉर्टेज अछि, मोर लेबर फोर्स भी शॉर्टेज अछि, मोर मशीन भी शॉर्टेज अछि, मोर टाइम भी शॉर्टेज अछि. That means I have 4 constraints. Constraint may be more than 1, 2, 3, 4, whatever may be. There should be a particular objective, and for fulfilling the objective we need to proceed with a given amount of constraint.
So for solving these situations, we will use the linear programming model. Clear? So please note it down. यदि लिख दिया तब लेवल आगे चला है. Okay. Next, there are two steps to solve linear programming model. There are two steps are available. By solving two steps, we can get the solutions. But in our syllabus, only one step we need to do. Second step is not there in our syllabus. So what is these two steps? First step, formulating the problem. Formulation of the problem. Step 2, solution. So solution is not required for us. Solution is required in practical, but for us in our syllabus solution is not there. Only formulating the problem is there. आमे केवल formulation करिबा. Formulation in the sense आमे equation करिके छाड़ दबा. Equation solve करी हमको दरकार नहीं. Equation solve करे को solution बोली कहउछे. तो हमको solution करे दरकार नहीं. हम खाली formulation माने आमे equation करी छाड़ दबा. आमे परीक्षा रे केवल equation करिया पे आसीबो. डेफिनेटली गोटे क्वेश्चन आसी 4 to 6 मार्क. 4 हे पारे 5 हे पारे 6 हे पारे. डेफिनेटली गोटे क्वेश्चन आसीबो. ता सहित गोटे दिरा बेट भी आसीबो. टोटल बेट इज 7 8 मार्क्स रोटा. तो गोटे क्वेश्चन आसीबो केवल फॉर्मुलेट तुमको इक्वेशन करियो कहबो सॉल्यूशन करियो कहबो नाही. सॉल्यूशन करिया पे हमर दी तीन स्टेप्स अछि किंतु फॉर्मुलेशन करिया पे किछ स्टेप्स नाही. सॉल्यूशन करिया मेथड होछि नंबर 1 ग्राफिकल मेथड. B सिंपलेक्स मेथड. मेनली दीटा मेथड अछि ग्राफिकल मेथड और सिंपलेक्स मेथड. आमे सिंपलेक्स मेथड अंडर रे भी आमे प्राइमल आरो डुअल ए सब नाम these are the methods for solving the linear programming, but fortunately or unfortunately we now need to solve these things. हमको सॉल्यूशन पार्टा दरकार नहीं. सॉल्यूशन पार्टा हमें फाइनल को गले पड़ेबा. इंटरफेसिस का हम केवल कोन दरकार अछि केवल फॉर्मुलेशन दरकार अछि. तो हमें प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर देला पारे हम काम सॉल्व. क्लियर? प्लीज नोट इट डाउन. तापर आगु चलो. ओके पिला लिखि सारलो. तापर हम देखिबा फर्स्ट में कोन दीगा स्टेप्स हमें सॉल्यूशन करिया पे गोटा होजे फॉर्मुलेशन गोटा होजे सॉल्यूशन. हमें सॉल्यूशन करिबानी फॉर्मुलेशन करिया. सो फॉर्मुलेशन है हमें करिया. फॉर्मुलेशंस three types of functions are involved in formulation of a linear programming model. That is number 1 objective function. Number 2 constraint function. Number 3 non negative function. Okay, what do you mean by the objective function? What do you mean by the objective functions? Objective function means this is a linear equations. Objective function is a linear equations which states
the objective of our organizations. Our organization objective कौन? Minimization of cost. That means objective function means it is an equation which states the minimization of cost, maximization of profit, whatever may be. What is our main objective? That should be converted into a linear equation which is called objective functions. All the constraints should have a different constraint functions or constraint equations. For one particular type of constraint, there should be one linear equations. If we have four constraints, then we will have four constraint functions. Always objective functions should be one, objective equations should be one, but constraint functions or constraint equations one or maybe more than one, depending upon the constraints. Number of constraints is equal to number of constraint functions or equations. Clear? Then non-negative function means simply our resources should not have negative. Our resources should not have negative. For example, मन कर आम कि प्रोडक्शन करने चाहूचे मत कहले तुम केते रो मटेरियल अच्छे मु कही मो पाखे -1000 टंकार रो मटेरियल अच्छे दैट मीन्स सेमिति रे काम होबनी. सो there should be non-negative function. That means the ingredients should not be negative, the resources should not be negative. Okay, so now we will going to solve the problem. एबे हमें problem solve करिबा, solution हम दरकार नै हमें कोन करिबा फॉर्मुलेशन करिबा हला. प्लीज नोट इट डाउन तापर हमें फॉर्मुलेशन करिबा. Okay now we are going to solve the questions. Illustration 29 तम बहिर illustration 29 से कहला a chemical company produces two compounds A and B. ता माने हमें दीटा प्रोडक्ट प्रोडक्शन करछे A और B दीटा प्रोडक्ट प्रोडक्शन करछे. The following table gives the unit of ingredients C and D for kg of compound A and B as well as minimum requirement of C and D and cost for kg of A and B. Write down the problem mathematically for minimize the cost. So write down the problem mathematically for minimizing the cost. That means ये कौन बचला minimizing the cost. So the objective function is minimizing the cost. Clear? ध्यान दियो से कौन बोले ना हमर प्रोडक्ट A B हमको तैयारी करे अछि A B तैयारी करे पे हमको C आउ D दरकार ता माने गोटे A करे पई हमको 1 गोटे C दरकार गोटे A प्रोडक्ट A बनिया पई गोटे C दरकार प्लस तीनटा D दरकार. गोटे C तीनटा D मिसी रे गोटे A हबो. गोटे A पई गोटे C तीनटा D आ गोटे B तैयारी करे पई गोटे B तैयारी करे पई मोर दीटा C दरकार गोटे B पई आ गोटे D दरकार. हेले जाई मोर कोन हबो गोटे B प्रोडक्शन हबो. आ गोटे कोन गोटे A प्रोडक्शन करे अछि A B प्रोडक्शन करे पई रो मटेरियल इंग्रेडिएंट्स माने रो मटेरियल होजे CID की मिसी रे जाई की A B तैयारी हो. तो गोटे A तैयारी करे पई मोर गोटे C तीनटा D दरकार. गोटे B तैयारी करे पई दीटा C गोटे D दरकार. क्लियर? तापर कॉस्ट पर केजी गोटे ए करे पे हमको 4 टका टू कम करे होचे काहे ना हमर मेन ऑब्जेक्टिव इज मिनिमाइजिंग द कॉस्ट. दैट मींस हमें गोटे जदी हमें ए करबा ताले हमको 4 टका रो कम कॉस्ट पड़े तार अधिक नै काहे मिनिमाइज करिया होचे. आ गोटे बी करे पे हमें 6 टका रो कम कॉस्ट पे करे पड़िबो. तार ऑब्जेक्टिव इज मिनिमाइजिंग द कॉस्ट. तार माने गोटे ए करे पे हमर 4 टका तार कम रहले भलो गोटे बी करे पे 6 टका तार कम करले भलो. मिनिमम रिक्वायरमेंट माने एटा होची कंस्ट्रेंट हमको सी के दरकार कम से कम 80 एटा सी दरकार 80 रो कम सी हेले हमें प्रोडक्शन करि परिबा नाही. हमको डी के दरकार कम से कम 75 एटा डी दरकार. दैट मींस ए दिटा होची हमर रिक्वायरमेंट माने हमर कंस्ट्रेंट. जदी 80 रो कमी गला ताले हमर काम होबो नाही. जदी एटा 75 रो कमी गला ताले भी हमर काम होबो नाही. क्लियर? तो बिला हमें एति की जिंस को नहीं कि हमको कोन करे अछि हमको किछ ऑब्जेक्टिव फंक्शन करे अछि हमको किछ कंस्ट्रेंट फंक्शन करे अछि आउ हमको किछ नॉन नेगेटिव फंक्शन करे अछि. फर्स्ट हमें कोन करिबा फॉर्मुलेशन आंसर एटा हमें करिबा. फर्स्ट स्टेप 1 हमर होछि ऑब्जेक्टिव फंक्शन रे कोन करिबा
ऑब्जेक्टिव फंक्शन करा तो फास्ट मु कहबी कि हमर कोन ऑब्जेक्टिव ना ऑब्जेक्टिव ए बी प्रोडक्शन करिबा जार की कॉस्ट कम हबो ए बी प्रोडक्शन करिबा जार की कॉस्ट कम हबो ता माने let x1 be the number of x to be produced, number of a to be produced. ता माने हमें पिलाने कोन करिबा ए बी प्रोडक्शन करिबा तार कॉस्ट कमे अछि हमर ऑब्जेक्टिव ए बी प्रोडक्शन करे तार कॉस्ट कमे अछि ता माने मु केतरा ए प्रोडक्शन करी मु जानछि कि मु केतुटा ए प्रोडक्शन करी मु जानछि तो केतरा ए प्रोडक्शन कले मोर कॉस्ट कम होबो माने मते x रो आंसर दरकार तो सेहि पई मु जानिली केतरा करी सेहि पई लेट x1 बी द नंबर ऑफ ए टू बी प्रोडक्ट हम केतरा ए करिबा x का x1 दा ए करिबा हम केतरा ए करिबा x1 दा ए करिबा ठीक सेमिति x2 बी द number of b to be produced हेला तमे कोन होला a b प्रोडक्शन करे मु जानि केतरा ए b केतरा ए तयारी करबी केतरा a प्रोड्यूस करबी और केतरा b प्रोड्यूस करबी क्लियर तो लेट मु x1 ना a करबी x1 नंबर ऑफ x1 में 10 15 20 30 50 100 लक्ष हजार जहां भी पारे केतुटा a करबी x1 टा a करबी केतरा b करबी x2 टा b करबी ता माने मोर ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोन रहबो ऑब्जेक्टिव फंक्शन एबे मु लिखिबी एटा लिखना पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेखा बिला लेट एग्जाम पर एटी पर लिखबे ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोन रहबो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोन रहबो ना मोर कोन ऑब्जेक्ट ला मिनिमाइजिंग द कॉस्ट सेही पे मु लिखबी मिनिमाइज z is equal to objective function should be expressed in term of z minimize z equal to कौन minimize है cost माने मोर cost पर kg माने गोटे a प्रोडक्शन करे मोर 4 टका होची हेले x1 रे प्रोडक्शन करे केते हो 4x1 हो देखो मोर गोटे a प्रोडक्शन करे पई बा गोटे kg a प्रोडक्शन करे पई तो मोर खर्च होची केते 4 टका तो x1 ता माने केते हो 4x1 तो गोटे b को जदी मोर छोटा खर्च होची x2 पई प्लस 6x2 बुझा पड़ला अरे बाबा गोटे b प्रोडक्शन करे पई मोर x2 छोटा खर्च होची x2 दा b प्रोडक्शन करिबी तो x2 6 तो गोटे a करे पई 4 खर्च होची त माने x1 दा a करिबी माने 4x1 तारा मोर टोटल कॉस्ट हैला a पई 4x1 b पई 6x2 दुटा मिसले टोटल कॉस्ट मोर ऑब्जेक्ट होची मिनिमाइज करियाला बुझा पड़ला दैट मींस minimize z equal to 4x1 plus 6x2 कहले गोटे करे पे 4 टका खर्च होची मु x1 टा करबी तो 4x1 खर्च हो a पई गोटे b पई 6 टका मु x2 टा केरी करबी माने 6x2 क्लियर तापरे हमें लिखबा constraint function हैला constraint function रे कोन अछि ना सिंपली हमको c d दरकार माने दुटा constraint c d c के दरकार माने कर देखो c a के डी कंस्ट्रेंट फंक्शन में कोन करबी मोर c के दरकार ना मो x1 ला a करबी ता माने c के दरकार गोटे लेके ता माने मोर देखो माने a के मु नंबर ऑफ a के करबी गोटे a करे पे गोटे c लागु मु करबी गोटे a करे पे गोटे c गोटे b करे पे दुटा c ता माने टोटल केता c दरकार मते a दिटा विषय रे मोर टोटल c दरकार ना मोर c दरकार केते गोटे करे पे गोटे c गोटे करे पे जदी गोटे c करे कोन गोटे करे पे जदी गोटे c गोटे a प्रोडक्शन करे पे जदी गोटे c x1 रे a करे पे केते ना 1 into x1 प्लस b के तरह में b आमे कहले देखि पिलाने एटा केते हम ना 2 6 तामे गोटे को दुटा लागुची मु केते करी b x2 दा 2 into x2 बुझा पड़ला x1 2x2 किमिति असले आउट होची बुझा पिला ठीक सिंपल कर देखो मु तुमको कहली गोटे a प्रोडक्शन करया पाई गोटे a प्रोडक्शन गोटे c तीनटा डी गोटे c तीनटा डी तापर b करया पाई दीटा c गोटे डी दीटा c गोटे डी एबे मन c दरकार माने एते को d दरकार माने एते को d दरकार एति c दरकार एति तो एटा मोर गोटे करया पाई c ना गोटे करया पाई 1c हेले मु x केते करछि a केते x1 दा तो x1 into 1c तो x1 into 1c माने देला एति होला ना तापर b केते दरकार ना गोटे को 2c दरकार कि मु बोलि x2 ता माने मु बोलि केते
2x2 क्लियर। तो मते बेटा केतरा दरकार पिला हमें ना मिनिमम रिक्वायरमेंट 80 ता माने मु ग्रेटर देन इक्वल टू 80 करी काहे की ग्रेटर देन इक्वल टू करी मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट मिनिमम माने 80 एबा तार अधिक दरकार ता तो कम हेले होबनी मिनिमम रिक्वायरमेंट होची 80 ता अधिक दरकार मने करो तमे कहयो बाबा मते कम से कम 5 टा दरकार आज न होबनी माने बाबा 500 बा ताडो अधिक देले तमर चलिबो 500 तो कम देले तम चले कम से कम मिनिमम 500 दरकार ताडो कमिले हबो नाही दा माने हमको मिनिमम दरकार अछि से ताडो अधिक देले भलो ताडो कम होले चलिबो नाही सेहि पई x1 + 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 80 तापर एबे हम देखिए d रे रिक्वायरमेंट सिंपली d रे रिक्वायरमेंट हो जेतो पिला हम बाय d रो ता माने मु कोन दरकार एक उडा देखले 3x तो माने 3x1 प्लस आकु केते दरकार ना आकु दरकार 1 into x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 75 ग्रेटर देन इक्वल टू 75 कायना मते ए दिला मिसी की 75 रो अधिक दरकार d मोर 75 रो अधिक दरकार त माने a पे केते दरकार गुटे उडो तीनटा म x1 करबी 3x1 b गुटे उडो गुटे म x2 करबी 1x2 क्लियर एटा हेला मोर कांस्टेंट फंक्शन ता माने 1 मल्टीप्लाई करले ता हम न करले ता हम 1 मल्टीप्लाई करी काहे कसलो करी हमें तो डायरेक्ट कोन होला x1 + 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 80 3x1 + x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 75 एबे हमें करबा नॉन नेगेटिव फंक्शन नॉन नेगेटिव फंक्शन रे तमे जेतरा भी वेरिएबल लेजो से सब जगह तमरो नेगेटिव न होबा अछि तमे केतरा वेरिएबल लेजो x1 x2 तो नॉन नेगेटिव रे x1, x2 should greater than equal to 0 greater than equal to 0 ता माने एजा को तमर केबे नेगेटिव होबा को बने 0 तिरे चलिबो किंतु नेगेटिव होबा को हबनी तमे नॉन नेगेटिव फंक्शन रे कोन लिखिबो तमे जेतरे भी वेरिएबल जेटा वेरिएबल x1 x2 तमे x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 जहां भी नहीं तो से सब जगह मामा दे लिख दबो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहना ए सब जगह नेगेटिव होबा को हबनी तो नॉन नेगेटिव रे सुबि किछले तो दिरे सब जगह ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन माने हमर ए क्वेश्चन का मेन ऑब्जेक्टिव थिला मिनिमाइजिंग द कॉस्ट 6.4x1 + 6x2 हमरा मिनिमाइज रे देखा जदि मैक्सिमाइजेशन होइता ना जदि हमर एटा प्रॉफिट देखा मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट देखा बोले मैक्सिमाइज रे इक्वल टू देखा क्लियर तापर कांस्टेंट फंक्शन हमर c ए डिग्री कांस्टेंट अछि c डी कांस्टेंट पे हमें एटा इक्वेशन बना दे क्लियर प्लीज नोट इट डाउन हेलो पिलाने एबे करबा नेक्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 30 ए पेंशन फंड मैनेजर इज कंसीडरिंग इन्वेस्टिंग इन टू शेयर्स ए एंड बी गुटा पेंशन फंड मैनेजर कोन थिला ताको जहा पैसा आसी पेंशन पई कंट्रीब्यूट होचे नॉर्मली पेंशन किमे मिले पिलाने आज डेट रे आमे पेंशन पई किछि पैसा बे कंट्रीब्यूट करबा परे हमर गोटे पर्टिकुलर एज आसला परे से पैसा टा कोटे इन्वेस्टमेंट हेगी थिबो ता रिटर्न रु हमको पेंशन दिया जिवो ता माने गोटे पेंशन मैनेजर जे कि पेंशन फंड को बुझा बुझी करछि से कहछि तार टोटल फंड को इन्वेस्टमेंट करबो कोठी दीटा शेयर इन्वेस्टमेंट करबो शेयर ए आउ शेयर बी ए शेयर ए विल अर्न ए डिविडेंड ऑफ 12% पर एनम शेयर ए रे जदी इन्वेस्टमेंट करबो ताहे 12% डिविडेंड मिलिबो जति टका इन्वेस्टमेंट करबो तार 12% डिविडेंड मिल जिवो तापर कहला पर एनम एंड शेयर बी 4% पर एनम देखो तुमको क्वेश्चन टेबल देनी तुमको टेबल क्लियर करे पड़िबो से कोन कहला हमरो दीटा शेयर्स अछि शेयर कोन अछि शेयर हमर गोटे शेयर ला ए आ गोटे शेयर ला बी हमर दीटा शेयर संपर्क अछि पॉइंट नंबर 1 शेयर ए विल अर्न ए डिविडेंड ऑफ 12% मतलब दी प्रकार इनकम मिले डिविडेंड केते मिलिबो ना ए रे डिविडेंड मिलिबो 12% तापर मिला बी रे डिविडेंड मिलिबो 4% ता माने पिला शेयर मो पारे ए बी दीटा शेयर थिला मोर ए रे जति लक इन्वेस्टमेंट करी तार 12% डिविडेंड मिलिबो बी रे जति इन्वेस्टमेंट करी तार 4% डिविडेंड मिलिबो तापर बिट बी सेकंड बिट होची ग्रोथ इन द मार्केट वैल्यू इन 1 ईयर शेयर ए विल 10 पैसा पर रुपी ग्रोथ माने कोन जो हमें शेयर इन्वेस्टमेंट करले दिन को दिन शेयर प्राइस ता बढ़ी जाउची 10 टका से 11 टका 12 टका 13 टका 14 जो बढ़ुची ताकू को जाय ग्रोथ तो शेयर 1 रे शेयर ए रे हमर ग्रोथ केते कहूची शेयर 1 रा ग्रोथ होची पिला माने
10 पैसा रुपीडी माने 100 पैसा ता माने 100 पैसा रो 10 पैसा ता माने केते परसेंट हैला पिला इज इक्वल टू 10%। 10% माने इज इक्वल टू 0.1 माने डायरेक्टली परसेंटेज हमें काहे करबा एति इज इक्वल टू 0.1 ना हमर ग्रोथ होची 0.1 ग्रोथ होची हमर 0.1 तापर ग्रोथ ऑफ शेयर बी रो ग्रोथ केते कहला से ग्रोथ इन द मार्केट वैल्यू इन 1 year of share A will be 10 paisa per rupee invested and in B 40 paisa per rupee invested 40 paisa per rupee माने 100 पैसा इज इक्वल टू 0.4 ता माने आर होची 0.4 क्लियर तापर कहला ही रिक्वायर्स इन्वेस्ट इन द मिनिमम टोटल सम व्हिच विल गिव ता माने तार ऑब्जेक्टिव कोन टोटल इन्वेस्टमेंट शुड बी मिनिमम तार ऑब्जेक्टिव होची टोटल इन्वेस्टमेंट शुड बी मिनिमम किंतु तापर से कोन कहला डिविडेंड इनकम ऑफ एटलीस्ट 600 पर इनकम हमको डिविडेंड के दरकार एटलीस्ट इनकम हमको दरकार एटलीस्ट मोर डिविडेंड हमको दरकार केते 600 तापर कहला से डिविडेंड इनकम ऑफ एटलीस्ट 600 पर इनकम एंड ग्रोथ इन 1 year ऑफ एटलीस्ट 1000 ग्रोथ हमको कम से कम मिनिमम 1000 दरकार on the initial investment you are equal to state the mathematical calculations for the problem which will facilitate the computation of minimum sum to be invested to meet the manager's objective our objective is minimum sum to be invested our objective is minimum sum to be invested माने केते कम पैसा इन्वेस्टमेंट करिबा ताकि हमको कम से कम 100 टका डिविडेंड इनकम आसीबो कम से कम 1000 टका ग्रोथ पण आसीबो काहे ना हमर कोर्सरे कोली 12% शेयर ए रे 12% डिविडेंड शेयर बी रे 4% और ग्रोथ शेयर ए रे 0.1 शेयर बी रे 0.4 क्लियर तो एबरा हम देखिबा हमर कोन थिला फर्स्ट हमर होची ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजिंग द इन्वेस्टमेंट आंसर इटा तो भी आंसर चालू करले क्वेश्चन है ए सब आंसर है करे तारे टेबल देई नते ए सब आंसर जाउची एबे मु कोन करबी let x1 be the amount of investment in share A ता माने शेयर A रे केतना इन्वेस्ट करबी x1 टका x2 be the amount of investment in शेयर B ता माने शेयर A रे x1 टका इन्वेस्टमेंट करबी शेयर B रे x2 टका इन्वेस्टमेंट करबी ता माने मोर ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोन होबो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोन होबी ना मोर ऑब्जेक्टिव होची मिनिमाइजिंग द टोटल इन्वेस्टमेंट कोइला क्वेश्चन लास्ट को मिनिमाइजिंग द टोटल इन्वेस्टमेंट ता माने मोर कोन होबो मिनिमाइज z is equal to x1 plus x2 काहे ना मो शेयर ए रे x1 टका इन्वेस्टमेंट करबी शेयर 2 रे x2 टका इन्वेस्टमेंट करबी टोटल इन्वेस्टमेंट मोर हैला x1 plus x2 जोडा कि मोर मिनिमाइज करिया अछि ता माने मिनिमाइज z is equal to z टा कैपिटल करो बोलो मिनिमाइज z is equal to x1 plus x2 काहे मो x1 इन्वेस्टमेंट करछि शेयर ए रे x2 इन्वेस्टमेंट करछि शेयर बी रे सेटा मोर टोटल इन्वेस्टमेंट x1 plus x2 हे गला जोडा कि मोर मिनिमम करिया अछि ऑब्जेक्टिव फंक्शन एबे कंस्ट्रेंट फंक्शन कंस्ट्रेंट फंक्शन कोन होइला रे मोर कंस्ट्रेंट फंक्शन होजे मोर कोन कोन कंस्ट्रेंट देखो मोर कंस्ट्रेंट होछि फर्स्ट डिविडेंड मोर डिविडेंड कोन होछि ना ए रे 12% बी रे 4% डी रे डिविडेंड बेसी मोर एटलीस्ट माने 600 बा ताठू अधिक होबार अछि डी रे बेसी 600 बा ताठू अधिक होबार अछि ता माने कंस्ट्रेंट होछि पिला माने मु ए रे इन्वेस्टमेंट कले x1 तो 12% माने केते 0.12 0.12% माने 0.12 x1 plus 0.12 x1 plus 0.04 x2
एटलीस्ट 600 माने 600 बा ताठो अधिक होचे ग्रेटर देन इक्वल टू 600 तापर इडा हेला पर डिविडेंड इनकम काई ना मु ए रे x1 टका इन्वेस्टमेंट करते जदी x1 टका इन्वेस्टमेंट करते डिविडेंड केते मिलिबो x1 रे 12% x1 रे 12% होचे 0.12 x1 तापर b रे मु इन्वेस्टमेंट करते केते b रे इन्वेस्टमेंट करते x2 रो 4% x2 रो 4% माने 0.04 x2 तो 0.04 x2 दीटे मिसी मोर 600 बा तार होगे एटलीस्ट 600 मन ता मधुर चले कमले चलिबो सेइ पे डेटा इक्वल 600 तापर ग्रोथ होगा मैं केते करबी तो 0.1 x1 plus 0.04 x2 greater than equal to 1000 greater than equal to 1000 बुझिला मोर ग्रोथ होची 0.1 ता माने x1 जदी इन्वेस्टमेंट करबी 0.1 x1 हे जिवो मोर एथिले ग्रोथ होची 0.4 जदी मैं x2 इन्वेस्टमेंट करबी 0.4 x2 हे जिवो तो टोटल मोर 1000 को अधिक होबार अछि क्लियर तापर सब कंस्ट्रेंट कोन है नॉन नेगेटिव फंक्शन नॉन नेगेटिव फंक्शन नॉन नेगेटिव फंक्शन कोन पिला हमें ना हम केतरा लेछि दीटा वेरिएबल लेछि ता माने x1, x2 greater than equal to 0 x1, x2 greater than equal to 0 काइना नेगेटिव होबा को हबनी दीटा वेरिएबल लेछि से दीटा वेरिएबल नेगेटिव होबो हबनी प्लीज नोट इट डाउन हेला पिला माने आज दिरा प्रॉब्लम कले नेक्स्ट क्लास रे बाकी सब प्रॉब्लम आ गोटे क्लास रे तमरा लीनियर प्रोग्रामिंग सर जीवो हेला थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।